Okay, so today our topic is our topic of tutorial is retrieval of sequence and sequence similarity searching. That's also known as BLAST, Basic Local Search Alignment Search Tool. So, what is the basic purpose of BLAST? BLAST is Basic Local Alignment Search Tool. It is a tool, ये एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल है या it's an algorithms that is used to find similarity between sequences. किस लिए होता है? डिफरेंट सीक्वेंस के दरमियान सिमिलरिटी फाइंड करने के लिए होता है. ठीक है. डिस्क्रिप्शन you can read here. Basic local alignment search tool or a BLAST is an algorithms for comparing primary biological sequence information such as amino acid sequences of different proteins or the nucleotide sequences of different organisms. A BLAST search enables a researcher to compare a query sequence. Query sequence means वो सीक्वेंस जो हमारे पास हैं जिसको हम सर्च करना चाह रहे हैं डेटाबेसेस के अंदर उसे हम क्यूरी सीक्वेंस कहते हैं. With a library or database of sequence and identify library sequences that resemble the query sequence above a certain threshold. Threshold mean a cutoff value. हम क्या करते हैं ब्लास्ट में? ब्लास्ट के अंदर हमारे पास एक क्यूरी सीक्वेंस होता है और उस क्यूरी सीक्वेंस को हम सर्च करते हैं डेटाबेसेस के अंदर. और जो ब्लास्ट है उसका फंक्शन ये होता है कि डेटाबेस के अंदर जितने भी सिमिलर सीक्वेंसेस हैं हमारे क्यूरी सीक्वेंस के मुताबिक से हमारे सीक्वेंस से सिमिलर सीक्वेंस है वो आइडेंटिफाई करते हैं और हमें एक कट ऑफ वैल्यू के साथ मींस अगर कह दे कि 50% सिमिलरिटी हो तो वो हमें 50% सिमिलरिटी हो तो वो सीक्वेंसेस सारे के सारे रिट्रीव होता है. ठीक है. दिस इज द फंक्शन मेन फंक्शन ऑफ ब्लास्ट. A BLAST program have been designed for speed with a minimal sacrifice of sensitivity to distant sequence relationship. BLAST is the most fastest program जिसके ज़रिए हम similarity searching करते हैं. The score assigned in a BLAST search have a well-defined statistical interpretations, making real matches easier to distinguish from random background hits. एक database के अंदर there are thousands and millions of data sequences. So we need a fastest program or a fastest algorithm to search our query sequence in a big database. Then last uses a heuristic algorithms. इसके बारे में हम लेक्चर में पढ़ेंगे. व्हाट इज ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम? एक एल्गोरिदम टाइप्स हैं जो जिसे हम अगर सिंपल वर्ड में कहते हैं कि जुगाड़ टाइप. ठीक है. ये 100% एक्यूरेसी नहीं है. इसके अंदर एक्यूरेसी थोड़ी सी कम हो जाती है बट स्पीड के हिसाब से सेंसिटिविटी कम होती है, स्पीड फास्टेस्ट होता है. That seek local as opposed to global alignment and is therefore able to detect relationship among sequences that share only isolated region of similarity. इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. Global alignment. There are two types of alignments. One is global alignment and the second is local alignment. और इसके बारे में हम थ्योरी में पढ़ेंगे. There are many different types of BLAST available from the main BLAST websites. Choosing the right one depends on the type of sequence you are searching with. Long,
short, nucleotide or protein. These are options. ये different options हैं. ब्लास्ट के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं. उन प्रोग्राम में आप कौन सा प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हैं, दैट्स will affect on your results. For example, there are blast n. Blast n means blast. N for nucleotide. ये याद रखना है आप लोगों ने, N for nucleotide. Similarly, blast P for protein. And similarly, blast PSI, that is position specific iteration. This is an advanced blast tools. उसके बाद blast X. Blast is the same सब के लिए. अब blast के बाद जो एक letter है, that is describing which type of query and which type of database you are using. So blast X means nucleotide 6 frame translation protein. Then T blast X nucleotide 6 frame translation nucleotide 6 frame, and T blast N protein nucleotide 6 frame megabit. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी के अंदर. ओके, सो दिस इज द वेबसाइट यूजर इंटरफेस ऑफ ब्लास्ट. अगर हम NCBI ब्लास्ट ओपन करते हैं, then go to this website, you will see this is basic local alignment search tool, and these are different options. This is nucleotide blast. Nucleotide blast का मतलब ये है, we have a query sequence of nucleotide and searching in a nucleotide database like GenBank. हमारे पास जो सीक्वेंसेस हैं वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हैं, और हम डेटाबेस के अंदर भी जो डेटाबेस हैं वो भी न्यूक्लियोटाइड का ही डेटाबेस है. सो हम क्या कर रहे हैं, क्यूरी भी न्यूक्लियोटाइड है और जो जिस डेटाबेस के अंदर हम सर्च कर रहे हैं वो भी डेटाबेस है. These two are the more common, nucleotide blast and protein blast. ये दोनों हम पढ़ेंगे. ये सबसे कॉमन है क्योंकि प्रोटीन ब्लास्ट के अंदर आपके पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है, और अमाइनो एसिड सीक्वेंस आप सर्च करते हैं अमाइनो एसिड डेटाबेस के अंदर. अगर आप गलत एल्गोरिथम सेलेक्ट करें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हो, एक सीक्वेंस है मेरे पास, और उससे मैं अगर प्रोटीन ब्लास्ट के अंदर सर्च करूं तो क्या होगा, कोई बता सकते हैं? सर वो कोई एरर आएगा. यस, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आपके पास एरर आएगा. ठीक है, एरर कैसे, किस टाइप का एरर होगा? इस टाइप का एरर होगा कि ये बताएगा कि आपने जो इनपुट दिया है दैट्स लुक लाइक न्यूक्लियोटाइड while you are searching in a protein database. ठीक है. सिमिलरली अगर मेरे पास अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस हो और मैं अगर ब्लास्ट एन कर दूं, अगेन इट देयर विल बी एरर, और एरर के अंदर हमें ये बताएगा द इनपुट सीक्वेंस लुक लाइक प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स. इस तरह का एरर आएगा. ओके, सो these are the two common blast. uh, at this stage we will go to only nucleotide blast and protein blast. okay, फर्दर अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम फिर ब्लास्ट एक्स और ब्लास्ट एन की तरफ जाएंगे. दीज टू आर लिटिल बिट कम्प्लेक्स. ये दोनों थोड़ा बहुत कम्प्लेक्स हैं. इसके लिए हमें बैकग्राउंड नॉलेज और थ्योरी की ज़रूरत है, जो हम थ्योरी में पढ़ेंगे उसके बाद हम इनकी तरफ जाएंगे. ओके, बट एट दिस स्टेज we will only go through nucleotide blast and protein blast. So what is the procedure? First, open the basic local blast search page. Then from the program,
pull down the menu, select the appropriate program. आपके पास ये हैं, इसमें से आप कोई appropriate program आप select करते हैं. Let's suppose we are interested in nucleotide blast. ठीक है. Then open your FASTA format sequence in a text editor or text plan. इसका मतलब ये कि आपके पास जो सीक्वेंस है वो आप बिफोर गोइंग टू द ब्लास्ट की तरफ जाने से पहले आपके पास कुछ क्यूरी सीक्वेंसेस होनी चाहिए, कुछ सीक्वेंसेस आपके पास होनी चाहिए जिनसे सिमिलर सीक्वेंस आप डेटाबेस में सर्च कर रहे हो. ओके. सो इस स्टेज की लेट्स सी, मैं कोई एक सीक्वेंस यहाँ से ले लेता हूँ कहीं से, लिस्ट ऑफ प्लांट्स. दिस इज let's suppose I have as protein sequence. Okay, this is a protein sequence. अब मेरे पास एक जीन है, सपोज करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी करके, मेरे पास ये एक सीक्वेंस है. ठीक है. दिस इज इन फास्टा फॉर्मेट. ये फास्टा फॉर्मेट में है. कोई बताएगा कि व्हाट इज फास्टा फॉर्मेट? सर वो हमेशा ग्रेटर साइन स्टार्ट होता है और उसके बाद थोड़ी सी आगे उसकी इंफॉर्मेशन होती है और फिर उसका गुड. दिस इज सर फास्टा फर्स्ट फॉर्मेट. फॉर्म में यस. ग्रेटर देन के साइन से स्टार्ट होता है और उसके बाद से लाइन आपके पास लाइन ब्रेक आता है और फिर उसके बाद आपका सीक्वेंस स्टार्ट होता है. देखिए, ग्रेटर साइन विल बी फॉलोड बाय एक्सेशन नंबर्स, ये जीन नेम और आइडेंटिफायर. आप कुछ भी यूज कर सकते हैं. एक्सेशन नेम हो सकता है, एक्सेशन नंबर हो सकता है, जीन नेम हो सकता है, या कोई जीन आइडेंटिफायर या कोई डिस्क्रिप्शन कुछ भी हो सकता है. एंड द नेक्स्ट लाइन से सीक्वेंस स्टार्ट होगा. दिस विल बी फास्टा फॉर्मेट. सो एज ए क्यूरी, अब हमें नहीं पता ये सीक्वेंस क्या चीज़ है. लेट्स सपोज, मुझे भी नहीं पता क्योंकि हमने अभी कोई होल जीनोम से लिया है. दिस इज ए होल जीनोम ऑफ अरेबिडोप्सिस लैरेटा. उससे एक सीक्वेंस लिया है, अननोन सीक्वेंस. ठीक है. वी डोंट नो द फंक्शन of this sequence, and we want to find what is the function of this sequence and uh, belong to which species. हम ये भी देखना चाहते हैं. लेट्स सपोज हमें ये नहीं पता कि ये हमारे पास है, ये XP रख लिए, हमें नहीं पता कि ये प्रोटीन सीक्वेंस कौन सा स्पीशीज से हैं और इसका फंक्शन क्या है. तो सिंपल वे है कि हम ब्लास्ट करते हैं. ब्लास्ट इज़ अ वेरी पावरफुल टूल. याद रखें, आप अगर आप बायोलॉजिकल स्टूडेंट हैं तो आप जिस स्टेज पे भी जाएंगे, आप ब्लास्ट के साथ आपका इंटैक्ट रहेगा. सेवरल टाइम्स आप एमफिल लेवल पे जाए, PhD में जाए या पोस्ट डॉक में, जहाँ पे भी आप जाएंगे तो ब्लास्ट के साथ आपका इंटैक्ट रहेगा. अगर आप हेल्थ साइंस में हो या इन्वायरमेंटल साइंस पे में हो या जिस भी फील्ड में हो, जिस फील्ड में भी आप काम करें, blast will use in there. Okay. So in this we have a protein sequence as a query. So we will copy this, then again go to database. अब यहाँ पे हमने blast n select किया हुआ है. It means ये साथ में आ रहा है, search a nucleotide database using a nucleotide query. So we will not use blast n. blast n हम यूज नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस है that's blast p. So हम blast p के ऊपर सेलेक्ट करेंगे. ये blast p पे अगर आप कर्सर लेके जाएं तो देयर विल बी अ लाइन, सर्च अ प्रोटीन डेटाबेस यूजिंग अ प्रोटीन क्यूरी. सो हमारे पास जो प्रोटीन क्यूरी है, वी आर पेस्टिंग हियर, दिस इज आवर प्रोटीन क्यूरी. ठीक है. हमारे पास प्रोटीन क्यूरी है. यहाँ पे देखिए, इंटर एक्सेशन नंबर्स. अगर आपके पास एक्सेशन नंबर हो जो प्रोटीन ब्लास्ट NCBI प्रोटीन के अंदर है डेटाबेस
के अंदर, so that will be enough. But in this case हमारे पास ये जो sequence accessions हैं, that is unknown in protein database, therefore we need sequences. Second option है कि आप sequence paste करें, this is FASTA sequence, ये FASTA sequence है. Then job title वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हुआ है, हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं कि जॉब टाइटल क्या है. Then डेटाबेस, दिस इज इम्पोर्टेंट कि यहाँ से आप कौन सा डेटाबेस में सर्च करना चाहते हैं. ठीक है, इनमें से कुछ डेटाबेस से ऑलरेडी हम गो थ्रू हो चुके हैं लेक्चर के अंदर, लाइक रेफसैक डेटाबेस, रेफरेंस सीक्वेंस डेटाबेस, प्रोटीन है, रेफरेंस सीक्वेंस डेटाबेस, न्यूक्लियोटाइड है, और यूनिप्रोट. आप बैकग्राउंड में कौन सा डेटाबेस के अंदर आप सर्च करना चाह रहे हैं. ठीक है, मीन्स ये कि आपके पास ये सीक्वेंस है और आप कौन से बैकग्राउंड डेटाबेस में सर्च करना चाहते हैं. अगर आपको कुछ नॉलेज ना हो कि कौन सा बेस्ट होगा, सो उस कंडीशन में आप जस्ट फर्स्ट को ही रखें, प्रोटीन सीक्वेंस NR. ठीक है, नॉन रिडंडेंट कहते हैं, नॉन रिडंडेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं, सो इसको रखें. अगर स्पेशली आप किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरे पास सीक्वेंस है इससे सिमिलर सीक्वेंस अरेबिडोप्सिस के अंदर, डॉप्सिस, अरेबिडोप्सिस के अंदर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे ये अरेबिडोप्सिस की पूरी लिस्ट आई है. और थलियाना, यस अरेबिडोप्सिस थलियाना इसके अंदर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ. That may be different according to your desired species. For example, okay, I am working on cotton. मैं कॉटन के ऊपर काम कर रहा हूँ. ये सीक्वेंस कोई अननोन सीक्वेंस है और इससे सिमिलर सीक्वेंस मैं कॉटन के अंदर सर्च करना चाह रहा हूँ. तो कॉटन का साइंटिफिक नेम है गॉसिपियम, गॉसिपियम. और गॉसिपियम के अंदर मैं जो इंटरेस्टेड हूँ उसमें हिरसुटम के अंदर. दिस इज द वर्क. भैया हमें कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिज्म का? ऑर्गेनिज्म का बच्चों, आप जिस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही पता चलेगा. फॉर एग्जांपल मैं काम करना चाह रहा हूँ कॉटन के ऊपर, आप काम करना चाह रहे हैं कि रेबिडोप्सिस के ऊपर, या कोई और काम करना चाह रहे हैं कि मेज प्लांट के ऊपर, या कोई और काम करना चाहे वीट के अंदर. ठीक है, तो जिस प्लांट के अंदर आप काम कर रहे हैं, डेफिनेटली जब आप कोई आप कोई कुछ सर्च कर रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर आप सर्च करेंगे. इवन दिस इज ऑप्शनल, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शनल है. अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ कॉटन के अंदर तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूँगा. इसका मतलब है कि इससे सिमिलर सीक्वेंसेस हमारे पास जो प्रोटीन सीक्वेंस है, जितने भी डेटाबेस के अंदर जितने भी हो, जिस ऑर्गेनिज्म से भी हो, अगर वो कट ऑफ वैल्यू पे के ऊपर आता है तो वो हमें आउटपुट के तौर पे दे दे. देन है दिस इज ब्लास्ट पी, प्रोटीन ब्लास्ट. बाकी फंक्शंस की तरफ फिलहाल हम नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स होंगे मजीद. तो उसके बाद जस्ट आप देयर इज अनदर ऑप्शन एल्गोरिदम्स में, अगर आप पैरामीटर्स के अंदर चेंज करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट सीक्वेंसेस 100 है, आप 10 भी कर सकते हैं. इसका ये मतलब है जो आउटपुट आपके पास सीक्वेंस आएगा वो 100 सीक्वेंसेस होंगे मैक्सिमम. अगर आप इसको 1000 कर दें तो पॉसिबल है वो 1000 तक जाए, बट उससे पहले कट ऑफ वैल्यू इज इम्पॉर्टेंट. इसे हम एक्सपेक्टेड थ्रेशहोल्ड कहते हैं, कट ऑफ वैल्यू. अगर आप इसको इंक्रीज करते हैं 5 से लेकर, अगर आप इस 0.05 से अगर आप 1 की तरफ जाएं तो इट्स मीन्स यू आर इंक्रीजिंग द रेंज. आप रेंज को इंक्रीज कर रहे हैं.
ये अपोजिट है। अगर आप थ्रेशहोल्ड वैल्यू बढ़ाते हैं, एक्सपेक्टेड इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब है आप रेंज को बढ़ा रहे हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा सीक्वेंसेस आ जाए। अगर आप इसको कम करते हैं, लाइक 0 है, अगर मैं यहाँ पे 005 कर दूं, इसका मतलब ये है, मैं ये बता रहा हूँ कि जो मेरे सीक्वेंस से हाईली सिमिलर ओनली जो मोस्ट सिमिलर सीक्वेंसेस हैं, सिर्फ वही मेरे पास आ जाए। मैं रेंज को कम करना चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ। जितना आप थ्रेशहोल्ड वैल्यू डिक्रीज करेंगे, सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। सेंसिटिविटी मींस सेंसिटिव होगा। अगर आप थ्रेशहोल्ड को इंक्रीज करेंगे, यहाँ से अगर आप इसको 1 करते हैं, आप दोनों तरीकों से चेक करें। 1 करके एक दफ़ा आप ब्लास्ट करें और एक दफ़ा 0.5 करके ब्लास्ट करें। तो 1 करके जब आप ब्लास्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स ज़्यादा आएंगे। जो डिस्टेंस एनिमल्स हैं या डिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सीक्वेंसेस हैं वो भी आएंगे। बट अगर आप इसको 0.5 रखते हैं, दिस इज डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये जो 0.5 ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मींस बैकग्राउंड में इन्होंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अगर ये 0.05 लेवल तक आता है, इसका मतलब है कि हमारे सीक्वेंस से सिमिलर है। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप इस स्टेज के ऊपर थ्रेशहोल्ड लेवल के साथ आप कोई चेंजेस ना करें। ये उस वक्त हम करते हैं जब हम थोड़ा सा किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या मोस्ट सिमिलर, हम सिर्फ जो मोस्ट सिमिलर 5 to 10 सीक्वेंसेस अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको मज़ीद कम करते हैं। या सेकेंड ऑप्शन, अगर हमारे पास प्लांट से ये सीक्वेंस प्लांट से हैं, अरेबिडोप्सिस से, और मैं सर्च करना चाह रहा हूँ कि इससे सिमिलर सीक्वेंस अगर बैक्टीरिया के अंदर, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर अगर मैं सर्च करना चाह रहा हूँ, तो 0.05 के साथ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अरेबिडोप्सिस इज ए हायर प्लांट्स और बैक्टीरिया दैट्स द प्रोकैरियोट्स। इन दोनों के जीनोम के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करनी पड़ेगी, मुझे रेंज बढ़ाना होगा ताकि मेरे सीक्वेंस से अगर 20% भी सिमिलर हो तब भी मेरे पास रिजल्ट आ जाए। ओके, सो लेट्स सी। इसके बाद हम ब्लास्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। So it will take a few seconds. ओके, कुछ देर के लिए हम ज़रा मैनुअल पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर आपने फास्टर सीक्वेंस कहाँ से कॉपी किया था? ओके, फास्टर सीक्वेंस एक्चुअली मेरे पास एक ऑलरेडी एक फाइल है, प्रोटीन फाइल है, जीनोम एक है अरेबिडोप्सिस लरेटा। यस सर। यहाँ से मैंने उठाया है। ये आपने पिछले एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आपने परफॉर्म किया है कि हम प्रोटीन सीक्वेंस कहाँ से ले सकते हैं। दैट इज आल्सो अवेलेबल इन दिस ट्यूटोरियल कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट द प्रोटीन सीक्वेंस और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, यस सर, डायरेक्ट एनसीबीआई से ले लें। यस, एनसीबीआई से आप ले सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से कॉपी किया सीक्वेंस और यहाँ पे पेस्ट किया है। लेट्स सपोज, और यही सीक्वेंस, सपोज करें यही सीक्वेंस मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ ब्लास्ट के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो हाउ यस सर। कैन रिट्रीव द सीक्वेंसेस, the tutorial is already available for this. And today our topic is similarity searching, BLAST. ओके, अब इसको देखिए, दिस इज ए न्यू यूजर इंटरफेस विंडो। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट, जॉब टाइटल, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मली डिफ़ॉल्ट जब आप फास्टा फाइल देते हैं तो जो एक्सेशन आईडी है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ जाता है। दैन दिस इज सर आईडी,
दिस इज सर्च रिक्वेस्ट आईडी। ओके, ये एक रिक्वेस्ट आईडी है डेटाबेस के अंदर, वो अपने रिकॉर्ड के लिए रख लेता है। दिस इज द प्रोग्राम एंड वी यूज ब्लास्ट पी प्रोग्राम। ठीक है, हमने ब्लास्ट पी प्रोग्राम यूज़ किए हैं। डेटाबेस के अंदर हमने क्या रखा था, NR नॉन रिडंडेंट डेटाबेस रखा था। इसको हम डिफरेंट भी कर सकते थे। और क्यूरी आईडी, दिस इज क्यूरी, दिस इज डिस्क्रिप्शन। अगेन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, अमाइनो एसिड है। लेंथ ऑफ क्यूरी कितनी है, 129 है, मींस जो हमने अमाइनो एसिड डिपॉजिट किया था सर्च के लिए। सो उसकी जो लेंथ है वो 129 है। ओके, देन कम टू दिस रिजल्ट्स, दिस इज द रिजल्ट, ये रिजल्ट है। अब देखिए, द फर्स्ट इज द डिस्क्रिप्शन। अगर आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके रखते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन आएगा कि कौन से सीक्वेंसेस हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन। ये सारे वो सीक्वेंसेस है जो हमने सर्च किया था उससे सिमिलर आया आप। ठीक है, आप देखिए डिफरेंट डेटा, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं। ये हैं अरेबिडोप्सिस लेरेटा। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये अरेबिडोप्सिस थालियाना आ गया। अगर आप मज़ीद दूर नीचे जाते हैं तो कैप्सुला रोबेला आ गया, ब्रासिका आया, एंड देन ब्रासिका नेपस, ब्रासिका, मींस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने जो सिलेक्शन की है, वी डिड नॉट स्पेसिफाई द ऑर्गेनिजम्स डेटाबेस। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने सर्च करना था उसको हमने फिक्स नहीं किया है, इस वजह से ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से है। सेकंड, हमने वहाँ पे ऑप्शन रखा था कि मैक्सिमम 100 सीक्वेंसेस हो, और यहाँ पे 100 सीक्वेंस है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये सिलेक्ट ऑल के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो इट्स मीन देयर आर ओनली 100 सीक्वेंसेस, राइट। देन दीज आर सम पैरामीटर्स। दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी चेंज होगा। दिस इज द मैक्सिमम स्कोर। Maximum score is a value that can be obtained by comparing our gene of interest or query with the sequence that is present in database. डेटाबेस के अंदर जो सीक्वेंसेस हैं और हमने जो सीक्वेंस सर्च के लिए सबमिट किया है उसके दरमियान एक सिमिलरिटी इंडेक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक स्कोरिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड में एल्गोरिदम्स है जिसमें ये कह रहा होता है कि इस तरीके से मेंशन होता है कि हमने जो क्यूरी सीक्वेंस दिया है उसके अंदर 100 अमाइनो एसिड हैं, और जो डेटाबेस के अंदर है उसके अंदर भी अगर 100 अमाइनो एसिड हैं, वन थिंग 100 अमाइनो एसिड दोनों के अंदर है, लेकिन सिमिलरिटी को जब हम देखते हैं तो 85 सीक्वेंसेस या 85 अमाइनो एसिड एसिड या 85 रेजिड्यूज या पोजीशंस अगर सेम हो, इट्स मींस सिमिलरिटी कितनी है, 85% है। ठीक है, इसी तरह टोटल स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर, दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। नेक्स्ट ऑप्शन है क्यूरी कवरेज। क्यूरी कवरेज का ये मतलब है, जो क्यूरी मींस जो सीक्वेंस हमने सर्च किया है, कवरेज मींस जो हमने सीक्वेंस दिया है उसका कितना परसेंट कवर किया है डेटाबेस के अंदर जो सीक्वेंस है उसने। अगर मैं इन सब को डिस्कस नहीं ये सिर्फ सिंगल एक डेटा, ये इसको मैं ज़रा सिलेक्ट करता हूँ। ये सीक्वेंस है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, और अगर आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से भी एक सीक्वेंस ओपन होगा। राइट साइड पे जो ऑप्शन है एक्सेशन के अंदर, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यू विल कम टू दिस साइट, और यहाँ से आप फास्टा सीक्वेंस के ऊपर अगर फास्टा के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो यू विल गेट द प्रोटीन सीक्वेंस। लुक एट दिस। ठीक है, सो दिस प्रोटीन सीक्वेंस
और जो डेटाबेस में हमने सर्च किया था उस प्रोटीन के अंदर उन दोनों की आपस में अलाइनमेंट होती है, सिमिलरिटी चेक करते हैं कि कौन से रेजिड्यूज किस पॉइंट के ऊपर हैं। उसके बाद ये एक क्यूरी कवरेज देते हैं, इसके अंदर 100% है। 100% का मतलब ये है कि अगर हमारे क्यूरी सीक्वेंस के अंदर 109 या 119 अमाइनो एसिड है, तो डेटाबेस के अंदर जो सीक्वेंस है, जो ये वाला सिर्फ टॉप वाला सीक्वेंस, इसके अंदर भी 109 ही है, कंप्लीट कवरेज हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जो सीक्वेंस हमने सर्च किया है वो एग्जैक्टली यही सीक्वेंस है जो डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी। ठीक है, ई वैल्यू 1E-88, ये जो ई के बाद माइनस है, ये जितना ज़्यादा हो इट्स मीन्स हाईली स्पेसिफिक, जितना कम हो इसका मतलब है कि हमारे सीक्वेंस से जो हमने क्यूरी सीक्वेंस सबमिट किया है उससे थोड़ा सा डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस है। अगर जितना हाई वैल्यू हो इट्स मीन्स हाईली सिमिलर। परसेंटेज आइडेंटिटी, दिस इज परसेंटेज आइडेंटिटी, और परसेंटेज आइडेंटिटी मीन्स कितना परसेंट सिमिलर है, एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, सॉरी इसको हम कहेंगे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मीन्स अगर एक लोकेशन के ऊपर m है तो दूसरे उसी लोकेशन के ऊपर भी m हो, उसे हम आइडेंटिटी कहते हैं। एग्जैक्ट आइडेंटिकल अमाइनो एसिड हो। सो क्यूरी परसेंटेज आइडेंटिटी कितनी, 100%। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास सीक्वेंस था वह दिस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस, और डेटाबेस के अंदर जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस, इसको ज़रा हम कॉपी करके देखते हैं हम मैन्युअली, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं सीक्वेंस, ये है डेटाबेस वाली। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कट, अब आप कंपेयर करें ज़रा, ये देखें ये डेटाबेस वाली सीक्वेंस है और ये हमारे पास पहले वाली क्यूरी थी। ये दोनों को कंपेयर करें, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर M है S है, सिमिलरली इस पोजीशन के ऊपर W है तो यहाँ पे भी W है। थोड़ा सा और आगे जाए, हम रैंडम देखना चाह रहे, यहाँ पे T है, यहाँ पे भी T है। लास्ट में अगर देख लो K है और यहाँ पे भी K है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने जो सीक्वेंस सर्च किया था एग्जैक्ट वही सीक्वेंस ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है, और जो आउटपुट आया है वो ये है। अब इससे हमें पता चला, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को अगर आप देखते हैं तो क्या है, हाइपोथेटिकल प्रोटीन ARAL YDRAFT, दिस में बी सम नेम ऑफ जीन और एक्सेशंस। इसके डेटाबेस के अंदर कोई एक्सेशन या जीन नेम्स वगैरह हो सकता है। इससे हमें पता चला कि हमारा जो सीक्वेंस है दैट्स बिलोंग टू अरेबिडोप्सिस लिरेटा। ठीक है, then we will move to second option, that is graphical सर summary. Yes please. सर अगर हम लोग एक्सेशन जो हमारे पास सर एक्सपेक्टेड थ्रेशहोल्ड है, अगर हम उसे कम कर देंगे तो क्या जी हमारे पास इतनी ज्यादा वैल्यूज आएंगी फिर जिस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ रही हैं? नो, अगर हम जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू है उससे अगर हम यहाँ से, वेयर इज द थ्रेशहोल्ड वैल्यू, ओके यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे हम इसको मज़ीद कम कर सकते हैं बच्चों। अगर हम थ्रेशहोल्ड वैल्यू कम करते हैं तो 0.05 रखा हुआ था ना, तो पॉसिबल है यहाँ 100 के बजाय सिर्फ ये टॉप 80 वाले आ जाए। जो टॉप 80 है ना, ये इस तरीके यस से सर। शायद टॉप 80 वाले आ जाए। जिनके लास्ट में है इनको अगर आप देख रहे हैं, देखिए तो ये ई के साथ 3E के साथ है -55 है, और इनकी परसेंटेज क्या है, 86% है। जो लास्ट वाला सीक्वेंस है हमारे सीक्वेंस के साथ 86% कवरेज है और 75% सिमिलरिटी है।
और जिनका 75% सिमिलर हो उसे हम कहते हैं कि दैट्स बिलोंग टू ए सिमिलर ग्रुप। ठीक है, ये प्रोटीन एक सिमिलर ग्रुप से हो सकता है, इवन स्पीशीज डिफरेंट है बट दैट्स में बी फ्रॉम सिमिलर ग्रुप, या फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो सेम हो सकता है। ठीक है, अगर हम यस सर। ई वैल्यू को बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल 0.5 से अगर हम 1 की तरफ लेके जाते हैं, तो देर में भी अदर ऑर्गेनिजम्स, इसके नीचे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं जिनकी वैल्यूज पॉसिबल है कि शायद ये जो परसेंटेज है, कवरेज या आइडेंटिटी है, अगर ये हम 1 पे रख लेते हैं तो शायद पॉसिबल है कि ये 20% वाले भी हमारे पास आ जाए। ठीक है, अगर हम 0.05 की बजाय 0.005 करते हैं तो पॉसिबल ये सिर्फ जो टॉप पे 10th है या 20 सीक्वेंसेस हैं सिर्फ वही आ जाए। ठीक है, सर यहाँ ये पे जो चेंज ई होगा। वैल्यू यस सर। सर इसका मतलब ये है कि जो हमारा थ्रेशोल्ड हम देंगे वो हमारे सीक्वेंस की स्पेसिफिसिटी डिटरमाइन करेगा। एग्जैक्टली exactly, जो आप थ्रेशोल्ड कट ऑफ वैल्यू कहते हैं, देखिए डेटाबेस के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस हैं, तो आप कट ऑफ वैल्यू यस सर। जब आप कट ऑफ वैल्यू सेट करेंगे तो उसी हिसाब से सर्चिंग होगी। ठीक है, अगर आप कट ऑफ वैल्यू के रेंज अगर यस बढ़ा देते हैं कि हम कहते हैं कि यार बैक्टीरियल जीनोम से भी सिमिलर अगर सीक्वेंस है वो भी रिट्रीव हो जाए। ठीक है, एक ये ऑप्शन, ये एक दूसरा ऑप्शन ये है कि हाईली सिमिलर सीक्वेंस, ये सीक्वेंस जो हमारे पास क्यूरी है वो जिस ऑर्गेनिज्म में भी हो सिर्फ वही हमारे पास रिट्रीव हो जाए, तो हम ई वैल्यू को मजीद डिक्रीज करते हैं। ठीक है, 0.0005 कर सकते हैं हम, 0.001 कर सकते हैं। ठीक है, हम डिक्रीज करेंगे। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दिस सर इज यहाँ पे जो आपके पास, यस प्लीज। सर यहाँ पे जो ई वैल्यूज लिखी हुई है वो तो 0.5 में नहीं लिखी है, वो तो 1E88 इतना लिखा हुआ ये हैं बच्चों, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ई वैल्यू मींस जो आपने वहां पे 0.05 है ना, इट डज नॉट मीन 0.05, इट्स मींस ये जो पावर की जो 10 लॉग की फॉर्म में होता है वैल्यूज, वहाँ पे ऑलरेडी बैकग्राउंड में 10 होता है, 10 के बाद आप इसके लॉग के ऊपर जो नंबर होता है पावर नंबर, वहाँ पे हम 0.05 को उसको सेट कर रहे होते हैं। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लॉग, क्योंकि हम इतने सारे वैल्यू जीरो को -88 मीन्स 0.0000000000 करके 88 जीरो के बाद फिर 1 आएगा इसका ये मतलब है। है। ओके सर। ठीक है, तो उसको हम उस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, उसको इजी बनाने के लिए हम लॉग की फॉर्म में लिखते हैं, ई वैल्यू को हमेशा हम लॉग 10 बेस की फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट, ग्राफिक समरी मींस ग्राफिकली एक्सप्लेन हो रहा है। ये देखिए, दिस इज अवर क्यूरी सीक्वेंस, ये हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो हम ऊपर है MSK, this is our Curie sequence if you are looking here, and this is the functional domain और specific hit का मतलब है कि प्रोटीन डेटाबेस के अंदर इसके अंदर कौन सा डोमेन है। अगर हम वो डोमेन देखते हैं या फंक्शनल डोमेन देखते हैं तो प्रो प्रोलेमिन लाइक सुपर फैमिली है। इसको अगर आप जूम कर सकते हैं तो ये प्रोल एमाइन है, आई थिंक जस्ट लाइक ये एक सुपर फैमिली है, वी डोंट नो इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, क्योंकि we are not interested in the background function of this protein sequence. We are just actually searching the similar sequences. Okay, this will also provide information regarding our Curie sequence. जो Curie sequence आपने सेंड किया था उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि उसके अंदर कौन सा प्रोटीन कौन सा फंक्शनल डोमेन है। अलाइनमेंट स्कोर, इसको अगर आप देख रहे हैं तो दीज आर शोइंग द अलाइनमेंट स्कोर। अगर अलाइनमेंट स्कोर अगर 100
200 या 200 से ग्रेटर हो तो रेड कलर होगा। रेड कलर मींस मोस्ट सिमिलर सीक्वेंसेस। ठीक है, हमारे क्यूरी सीक्वेंस से जो मोस्ट सिमिलर सीक्वेंसेस हैं वो रेड में होगा। उसके बाद उससे कम वाले फिर पर्पल में। ठीक है, इस हिसाब से कलर चेंज होगा। सो अब आप नीचे की इसकी तरफ आ जाए, ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। दिस इज अवर क्यूरी। क्यूरी में कितने सीक्वेंसेस हैं? 1 से लेकर आई थिंक देर 120 है, तो 125 या 129 अमीनो एसिड सीक्वेंस है क्यूरी। ये जो क्यूरी लिखा हुआ है, दिस इज आवर सीक्वेंस जो हमने सबमिट किया था, एंड दीज आर रिजल्ट्स ऑफ डेटाबेसेस। यहाँ तक देख रहे हैं रेड हैं, तो रेड जितने भी सीक्वेंसेस हैं, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एग्जैक्ट दूसरे ऑप्शन के ऊपर जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पे जो नेम है, प्रोटीन नेम जो डेटाबेस के अंदर है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। ऐसा ही है। तो लास्ट टू हैं, these are uncharacterized protein and that similarity is 80 to 200। अगर 80 to 200 के अंदर इसका अलाइनमेंट स्कोर हो, अलाइनमेंट स्कोर मींस एक सीक्वेंस का दूसरे सीक्वेंस के साथ कितना परसेंट सिमिलरिटी है, लाइक दिस। इस लोकेशन के ऊपर CAF है तो यहाँ पे भी CAF है। पॉसिबल है यहाँ पर इसमें मैं अगर चेंज करूँ, इस तरीके से अगर लिखूं, तो ये देखिए बाकी सारे यहाँ से यहाँ तक ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस बोथ आर सिमिलर, बट एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन के ऊपर ये क्या है, इस पोजीशन के ऊपर सीक्वेंस डिफरेंट है। ऐसे ही है। तो ये जो स्कोरिंग देते हैं हम, इन डिफरेंसेस और सिमिलरिटी को आपस में हम सम अप करते हैं। अगर सिमिलरिटी है तो एक रेजिड्यू के ऊपर, एक पोजीशन के ऊपर अगर सिमिलरिटी है तो हम लेट्स सपोज 5 मार्क्स देते हैं। अगर वहाँ पे सिमिलर हैं तो 3 मार्क्स देते हैं। अगर वहाँ पे गैप्स हो या अगर वहाँ पे कोई और रेजिड्यूज हैं तो हम उसे -2 देते हैं। डिफरेंट हो रहा है ना। तो इसकी टोटल अलाइनमेंट जो आपके पास स्कोर हैं, दैट विल बी द सम ऑफ द सिमिलरिटी एंड डिससिमिलरिटी वैल्यू ऑफ क्यूरी सीक्वेंस एंड द डेटाबेस सीक्वेंस। इस तरीके से आपके पास ये रिजल्ट आएगा, राइट। देन नेक्स्ट अलाइनमेंट की तरफ अगर आप जाते हैं तो अगेन वही चीज़ है। ये जो डिस्क्रिप्शन में जो जीन्स हैं उन्हीं को ग्राफिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और उन्हीं को जो उन्हीं सीक्वेंसेस का आपस में अलाइनमेंट यहाँ पे शो किया है। अगर आप देख रहे हैं तो ये देखें, ये अलाइनमेंट है। सारे के सारे जितने भी सीक्वेंस हमारे पास आए थे उन सब की अलाइनमेंट यहाँ पे शो होता है। अगर आप देख लेते हो फर्स्ट जीन, ये देखिए ये फर्स्ट जीन है जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला जीन था, अरेबिडोप्सिस लरेटा। वही अलाइनमेंट के अंदर भी वही जीन फर्स्ट पे हैं। और ये हैं हमारी क्यूरी। क्यूरी मींस जो सीक्वेंस आपने सबमिट किया है। सब्जेक्ट मींस द सीक्वेंस दैट इज प्रेजेंट इन डेटाबेस एंड सिमिलर टू आवर सीक्वेंस। ठीक है, इनके अगर आप अलाइनमेंट देखते हैं तो 100% सिमिलर हैं। ये देखिए स्कोरिंग इन्होंने दिया है कि 263 स्कोरिंग दी है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ई वैल्यू इतना हाई है। और आइडेंटिटी अगर देखते हैं तो 129 अमीनो एसिड्स हैं, और आउट ऑफ 129 ही आइडेंटिकल है, सिमिलर है। पॉजिटिव 100% है, गैप्स कोई गैप्स नहीं है। अगर हम नीचे की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ, सीक्वेंस की तरफ, इनके से अगर आप सीक्वेंसेस देखते हैं अलाइनमेंट, ये देखें ये दो पोजीशन डिफरेंट है। अब इस वजह से स्कोर भी कम होगा। क्यों? क्योंकि 3 अमीनो एसिड आर डिसिमिलर इन आवर क्यूरी एंड द डेटाबेस। इसी वजह से एक्सपेक्टेड वैल्यू भी कम है। अगर आप आइडेंटिकल देखते हैं तो 1111 में से 108 आइडेंटिकल हैं, और 3 अमीनो एसिड दैट्स आर नॉन आइडेंटिकल। सिमिलरिटी
इसी का जो इन्होंने परसेंटेज निकाला यहाँ पे, गैप्स कोई नहीं है। अगर आप मज़ीद इसको अगर आप नीचे लाते हैं, हम लास्ट सीक्वेंस की तरफ ज़रा जाना चाह रहे हैं। यस, इस सीक्वेंस की तरफ अगर आप देखें, दिस इज आवर क्यूरी सीक्वेंस, दिस इज आवर क्यूरी सीक्वेंस, दिस इज सब्जेक्ट सीक्वेंस, sequence that are present in database. So क्यूरी सीक्वेंस और इन सीक्वेंस के दरमियान जो सिमिलरिटी है, दैट्स आर मेंशन्ड बाय दिस सीक्वेंस दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू सीक्वेंसेस। ऊपर वाले सीक्वेंस और नीचे वाले सीक्वेंस के दरमियान अगर सिमिलर है तो एग्जैक्ट उन्होंने वही अमाइनो एसिड भी यहाँ पे शो किया है। अगर डिफरेंट है, सम हाउ सिमिलर, ये देखें प्लस है, कुछ के ऊपर प्लस है, कुछ के ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो प्लस है इट्स मीन सिमिलर। अगर आइडेंटिकल है तो एग्जैक्ट सेम है। सिमिलर मींस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स। अगर दोनों अगर ये एस पोलर हैं तो ए भी पोलर होगा, अगर ये एस नॉन पोलर हैं तो ये भी नॉन पोलर हैं, तो दीज बिलोंग टू सिमिलर ग्रुप्स, इस वजह से इसको प्लस देते हैं। अगर बिल्कुल डिफरेंट हो, के पॉसिबली बिलोंग टू पोलर, देन एच बिलोंग टू नॉन पोलर। इस तरह के अगर डिफरेंट हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। सो इसी हिसाब से स्कोरिंग होती है। आप देख सकते हैं कि 10112 में से 85 अमाइनो एसिड्स आर सिमिलर, आर आइडेंटिकल, इट्स मींस 76% सिमिलरिटी है, ठीक है, और गैप्स कोई नहीं है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्लास्ट रिजल्ट्स अलाइनमेंट। ओके, एंड द लास्ट वन इज द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर टैक्सोनॉमी में जस्ट जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, अरेबिडोप्सिस लेरेटा और अरेबिडोप्सिस थालियाना, अरेबिडोप्सिस थालियाना, फिर कैप्सुला, these organisms will be enlisted here। टैक्सोनॉमी के अंदर देखिए तो मज़ीद फर्दर ऑप्शन है। लीनिएज, ये ऑर्गेनिजम्स कौन से लीनिएज से हैं? ये ब्रासिका से हैं और यूडाइकॉट से हैं। उसमें नंबर ऑफ हिट्स इतने आए हैं ब्रासिका के अंदर, और ब्रासिका नेपस ऑर्गेनिजम्स में एक हिट है और ब्रासिका वालेरेसा के अंदर एक हिट है। यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स डिटेल हैं, वही चीज़ जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में था, एंड टैक्सोनॉमी के अंदर भी वही चीज़ें हैं। सो दिस वाज द समरी ऑफ BLAST N, BLAST P. So we have performed BLAST P and discussed each and every parameters of BLAST P. Okay, is there सर any query? एक बार Please सर let एक बार me know. हिट्स का बता दें। Where is hits? Okay, the hits means, hits हम कहते हैं कि how many number, ठीक है, कितना सीक्वेंस के साथ ये टच होता है, सिमिलर है, इंटैक्ट होता है, या अगर हम अलाइनमेंट करते हैं। हिट नंबर मीन्स जितना अगर हिट नंबर ज़्यादा हो, अगर आपके पास आपकी क्यूरी सीक्वेंस में आपका क्यूरी सीक्वेंस है, दिस इज एक्चुअली हिट नंबर्स। डेटाबेसिस में तो मिलियंस है ना, डेटाबेसिस में मिलियंस यस ऑफ सर। सीक्वेंसेस हैं। उन मिलियंस में अगर आपके पास 20 सीक्वेंसेस आपको आउटपुट आता है, इट्स मीन्स 20 हिट्स। अगर आपके पास 100 हिट्स होता है, 100 रक्त होता है, तो फिर आपका 100 हिट्स है। हिट्स का मतलब सिंपली वही चीज है, आप कितनों के साथ ये टच होता है, कितने सीक्वेंस के साथ ये सिमिलर है जो आपके पास आउटपुट आया है, ठीक है। यस इज सर। दिस क्लियर यस सर। हिट? ये हिट क्लियर यस है? सर। ओके, ओके, अगर आपको मजीद क्लियर करने के लिए यहाँ पे, ओके, नंबर ऑफ हिट्स है ना, ये देखें नंबर ऑफ हिट्स है, ठीक है। इसका मतलब है साथ पे लिखा हुआ है, क्या है, शो रिपोर्ट फॉर 185 ब्रासिका सीक्वेंसेस। इसका मतलब है कि 185 ब्रासिका सीक्वेंसेस इससे सिमिलर है, ठीक है। इवन हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर 100 है, 100 क्यों? क्योंकि हमने
सेलेक्ट ही इतना किया था कि मैक्सिमम 100 ही आ जाए। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो ये यहाँ पे जो 185 सीक्वेंसेस हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। और एबिडोप्सिस के अंदर 65 सीक्वेंसेस मिला है। So these are hits are actually number of sequences that are similar to our sequences in different organisms. Okay. So Yes, this sir. was the summary of this was the our practical related to BLAST. अगर आप अभी हमने BLAST P परफॉर्म किया, सिमिलर रिजल्ट्स आपको BLAST N में भी आएगा अगर आप न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट एन परफॉर्म करते हैं। सो यहाँ पे फिर वी है sequences format, make sure your sequence blast option, then query submit, then interpretation। results में आप यहाँ पे इसको लगा देंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी एक स्नैप प्रिंट ले लें और ग्राफिकल की एक प्रिंट ले लें और अलाइनमेंट की एक प्रिंट ले लें। सो ये जो प्रिंट्स लिए है यहाँ पर मैंने, एंड दोस प्रिंट विल बी हेयर रिजल्ट्स के अंदर आपने लगा देना है, ठीक है, जो आप प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, इज देयर एनी क्वेरी, प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई एम Sir, क्लोजिंग manual. दिस ट्यूटोरियल। Sir, यस, मैनुअल में लगाएंगे हम ये पिक्चर्स। यस, मैनुअल्स में एक दो पिक्चर्स तो आप लगा दें। सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास मैनुअल होना चाहिए, और अगर आप लोग यहाँ पे भी इसमें लगा सकते हैं तो अपने मैनुअल्स में अपने रिकॉर्ड के लिए लगा दें जो यूज़र इंटरफेस हैं। ये यूज़र इंटरफेस लाइक फॉर एग्जांपल दिस वाज द यूज़र इंटरफेस। आप इसकी एक स्नैपशॉट लेके आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि इसके बाद यहाँ पे लगा दें, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी हो कि कौन सा क्या क्या ऑप्शंस है। ओके, ओके सर। Okay, sir. प्लीज ज्वाइन अगेन